Hello. Hello, Sandy. Sandy, aim at your keyboard. We need to see your keyboard. Right. Yeah, no, you know what? I was trying to connect with my laptop. For some reason, it still didn't connect. So that's why I connected with my phone. So my laptop was set up to show the keyboard. Here, that's my keyboard. Okay, take it. Not just your keyboard. We need to see your fingers when they move on the keyboard. Correct. Let me see what I can do in that strange situation. Somehow the laptop thing didn't. I think laptop went to the other account, which I got locked out of. Oh, is it? Okay, let me try then. 1 second. I'll put you guys on hold. I'll try again. Just 2 minutes more. We're going to start at 12:05. Okay. अच्छा मैंने फोन से भी कनेक्ट किया है. Let me try like this today then. And अजय जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ फोन से भी मैंने कनेक्ट किया है क्योंकि भी आपको. Very good, very good. ठीक है. Yeah, your prince is there too. Prince, bhai sahab aa gaya. Now we can start the show. Hello. I was in another ID, but then I realized. Look, yeah. My mistake. Yeah. Your Asha's setup is really good, and of course, Eddie Bhai Saab's setup is really good. हाँ, मैंने छाया कैमरा थोड़ा ऊपर को किया है, वो एडी जी ने सजेस्ट किया. और I mean higher. हाँ, तो उससे हो गया. तो मैं it's okay, like you can, if you can, then do it. I can't. Prince bhai, aim at your keyboard. यार मैं कीबोर्ड में सेट किया है. मैं हारमोनियम है मेरे पास. So it should be facing the harmonium. No, that's okay. Yeah, I've said I have a keyboard, nice keyboard. अगली बार मेरा पियानो भी है, अगली बार सेट कर दूंगा. Can you see the harmonium? You cannot see the harmonium. Yeah, तो इसमें नहीं आता है, फोकस नहीं करता है. जब पीछे ब्लड इमेज होती है तो और कुछ फोकस नहीं करता ये. Azad bhai, should I make you the host? No, it's okay. अच्छा जी, हम लोग ये कहाँ से आ रही है फीडबैक? चलिए हम शुरू करते हैं. आवाज आपको आ रही है? आवाज तो आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है. I'm getting a lot of scratchy sound. So is it just me, or everybody else is having the same issue? Yeah, there is some disturbance in the sound. अब ठीक है? अब ठीक है. ओके, मैंने फोन से म्यूट कर दिया. हाँ, अभी तो नहीं आ रही है. ठीक है. Chanda ji, Sandy is Chanda. Please focus on the keyboard, even if you are out of the picture. Focus on the keyboard so that he can see. Yes. Actually, we can't see the keyboard. We can't see the keyboard. अनम्यूट कीजिए, माइक आपका म्यूट हुआ है. I just have one confession. Sandy ji, Azad ji needs to see your keyboard. You should be less than 10% of the picture. Unless you set up like Asha ji. Let's set up right way.
सैंडी जी कह रही है मैं तैयार होके आई हूँ और तुम करने नहीं दे रहे हो मेरे को. No, that's not the case. I'm just trying to see how I can get the whole keyboard there. And that too with the phone. because it's not- सैंडी भी है कभी हम लोग सैंडी बोलते हैं. प्रिंस भाई आप तुम्हें म्यूट कर लें प्लीज. मैं ओके. आपके एक्वोज आ रहे हैं. ठीक हो गया सब? अब बस एक जना रह गया है. हाँ यू कैन स्टार्ट सर. ओके. तो कीबोर्ड जो है बजाने के लिए जो भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है हमारी फिंगर पोजीशन जो है वो अच्छी बने. अगर हम फर्ज करें हम कीबोर्ड बजा रहे हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे कुछ नजर आए, तो हमारी फिंगर जो है ऐसी चलनी चाहिए कि नीचे से ऊपर तक जाए, तो वो अटके ना. तो फिंगर पोजीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और सबसे पहला लेसन जो है फिंगर पोजीशन, कि आपके कौन सी फिंगर कौन सी की के ऊपर होनी चाहिए. तो आज हम शुरू करेंगे सी शार्प मेजर का स्केल हम लोग प्ले करेंगे. सी शार्प मेजर के स्केल में क्या क्या नोट्स हैं? सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प. ये है सी शार्प मेजर का स्केल. तो हमने फिंगर पोजीशन इसमें कैसी रखनी है? शुरुआत होगी पहली फिंगर से, ये, उसके बाद दूसरी फिंगर डी शार्प के ऊपर, उसके बाद थंब आएगा हमारा एफ के ऊपर, एफ शार्प के ऊपर पहली फिंगर, जी शार्प के ऊपर दूसरी फिंगर, ए शार्प के ऊपर चौथी फिंगर, उसके बाद फिर थंब आएगा सी पे, और उसके बाद सी शार्प के ऊपर फर्स्ट फिंगर. उससे क्या होगा कि हम पूरे कीबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं. यहां से भी अगर हम शुरू करें, कहीं पे हमारी फिंगर रुक नहीं रही है और हम पूरे कीबोर्ड के अंदर खेल सकते हैं. तो सबसे पहले जो है आप लोग में से कोई भी एक मुझे अपनी फिंगर पोजीशन दिखाए कि वो कैसे प्ले कर सकते हैं. आप ये इस चीज को लिख लीजिए कि कौन सी नोट के ऊपर कौन सी फिंगर होनी चाहिए. मैं दोबारा से बताता हूं आपको. आपकी जो पहली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर सी शार्प के ऊपर, मिडिल फिंगर डी शार्प के ऊपर, थंब एफ के ऊपर, फिर दोबारा आएगी हमारी फर्स्ट फिंगर एफ शार्प के ऊपर, फिर हमारी मिडिल फिंगर आएगी जी शार्प के ऊपर, फिर हमारी फोर्थ फिंगर आएगी ए शार्प के ऊपर, फिर हमारा थंब आएगा सी के ऊपर, और उसके बाद फिर हमारी पहली फिंगर आएगी सी शार्प के ऊपर. और उसी तरह से हमने वापस भी आना है. सेम उंगलियां यूज करते हुए हमने ऊपर जाना है और हमने वापस आना है. समझ में आया? अगर कोई रजत क्वेश्चन जी जरा लिखवा देंगे हमें प्लीज स्लोली. हाँ बिल्कुल. हाँ नोट्स ले लीजिए. सी शार्प के जो है उसके ऊपर आपकी फर्स्ट फिंगर, डी शार्प के ऊपर आपकी मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर आप जिसको कह रहे हैं दैट इज योर बड़ी वाली उंगली, नॉट द थंब. पहली उंगली आफ्टर थंब.
अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट फिंगर हमारी गई सी शार्प के ऊपर, मिडिल फिंगर गई हमारी डी शार्प के ऊपर, फिर आया हमारा थंब एफ के ऊपर, उसके बाद फिर हमारी फर्स्ट फिंगर आई एफ शार्प के ऊपर, फिर हमारी मिडिल फिंगर आई जी शार्प के ऊपर, उसके बाद हमारी जो फोर्थ फिंगर है वो आई ए शार्प के ऊपर, उसके बाद फिर हमारा आया थंब सी के ऊपर, और उसके बाद फिर हमारी फर्स्ट फिंगर आई सी शार्प के ऊपर। जहां से हमने शुरू किया है, जिस फिंगर से शुरू किया है, अगर हम सी शार्प के ऊपर फर्स्ट फिंगर यूज कर रहे हैं तो अगला जो ऑक्टेव है, अगला जो सप्तक है, उसके ऊपर भी हमारी सेम ही फिंगर आनी चाहिए ताकि हम आगे भी जा सकें। अगर हमें आगे जाना है कीबोर्ड में, आगे हमें और भी चीजें बजानी है, तो जब तक हमारी फिंगर पोजीशन ठीक नहीं होगी एक स्केल बजाने के लिए, हमारा स्केल ठीक कभी भी नहीं हो सकता। सबने लिख लिया ये? हजरत भाई मेरी गलती है कि मैंने इनको एक पिक्चर भेजी है जिसमें थंब इज नंबर 1 एंड पिंकी इज नंबर 5। वो गलत है। सी वो गलत है। वो आपने सी का भेजा होगा। जी जी जी, तो वो सब नोट कर लें प्लीज, वो गलत है। नहीं, सी अगर हम सी से बजा रहे हैं ना, सी का जो वाइट स्केल है, सी मेजर बजा रहे हैं, तो वो थंब से शुरू होगा। जो नीचे का वाइट स्केल है वो आपका थंब से ही शुरू होगा। लेकिन हम क्या कहलाता है? वो सी मेजर है, सी वाइट, वो सी मेजर है, ये सी शार्प। ये सी शार्प मेजर है। तो जो ब्लैक नोट्स है, ब्लैक नोट्स आपकी फिंगर से शुरू होते हैं, और जो व्हाइट नोट्स का कोई स्केल आपने प्ले करना है तो वो थंब से शुरू होता है। अब फर्स्ट कीजिए हम यहाँ पर बजा रहे हैं। असाजी माफ करिएगा जरा, हाँ मैं जी, छाया हाँ। बोल रही हूँ। मेरे को ना सी शार्प ही नहीं पता है कौन सा। अच्छा। Is it a fifth black or the sixth black? No, it's the first black. First black, right from the beginning, Yes. अच्छा, right at the edge. आप एक काम कीजिए, पहले देखिए हमारा जी हाँ। कीबोर्ड जो नीचे से जहां से शुरू होता है, जी हाँ, दो हैं वहां पे काले। हाँ, उससे नीचे जो है वो सी है, ये देख रही हैं आप? यस, ठीक अच्छा है? वो सी है। पहले आप नोट्स याद कर लीजिए। हाँ वही मुझे नहीं पता। तो सी, उसके बाद उसके जो ऊपर ब्लैक वाला है वो सी शार्प। अच्छा, ये लिखती जाइए आप, मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए। जो आपकी व्हाइट कीज हैं उनका नाम क्या है? सी डी, लिखिए सी डी ई एफ जी, उसके बाद आता है ए बी। हाँ, नीचे से बजाइए, नीचे से व्हाइट कीज को टच कीजिए, खाली ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, अभी ब्लैक को छोड़ दीजिए आप। ब्लैक को अभी आप हाथ मत लगाइए, अभी आप सिर्फ व्हाइट पे हाथ लगाइए। व्हाइट के ऊपर देखिए, वो है, पहला है आपका सी, उसके बाद उसका बराबर वाला है डी, उसके बाद अगला है ई, उसके बाद है एफ, उसके बाद है जी, उसके बाद वाला जो है वो है ए, और उसके बाद जो अगला है बी। तो ये आपके 7 सुर हो गए। उसके बाद जब आप दोबारा आगे जाती हैं तो वो दोबारा सी आ जाता है। दो काले जो आपके नोट्स हैं उनके नीचे जो भी पहला है वो सी ही है, वो पूरे कीबोर्ड में ऐसे ही है, और वो सेम सुर देगा आपको। देखिए मैं यहां से सी बजाता हूं, ठीक है, 4 जगह से भी मैं सी बजा रहा हूं तो सुर वो सेम ही आ रहा है। अच्छा, सी से लेके सी तक हम उसको कहते हैं 1 ऑक्टेव।
1 ऑक्टेव मतलब हमारा सी से शुरू हुआ, सी तक पहुंचा, वहां पे 1 ऑक्टेव खत्म हुआ, उसके बाद हमारा सेकंड ऑक्टेव शुरू हो गया, उसके बाद हमारा थर्ड ऑक्टेव आ गया, फिर हमारा फोर्थ ऑक्टेव आ गया। हिंदी में इसको कहते हैं सप्तक। सी से सी तक 1 सप्तक, उसके बाद आगे गए सप्तक नंबर 2, सप्तक 3, सप्तक 4, ऑक्टेव 1, ऑक्टेव 2, ऑक्टेव 3, ऑक्टेव 4 इंग्लिश में। अच्छा, अब जो नीचे का हमने जो नोट्स लिखे हैं उसके ऊपर जो ब्लैक नोट्स हैं उनको कहते हैं शार्प नोट्स। शार्प नोट का मतलब क्या होता है कि फर्ज करेंगे जी आधा सुर जो बिल्कुल होता है, आधा सुर, पूरा नहीं, आधा सुर ऊपर, उसको कहते हैं शार्प। सी के ऊपर जो ब्लैक नोट है उसको कहेंगे हम सी शार्प। डी के ऊपर जो ब्लैक नोट है उसको कहेंगे हम डी शार्प। ई का कोई शार्प नहीं है तो ई अकेला ही है, मेरी तरह अकेला है वो, सिंगल। उसके बाद एफ आ गया, एफ के ऊपर वाला जो ब्लैक नोट है वो है एफ शार्प। उसके बाद आपका नीचे आ गया जी, जी के ऊपर वाला जो ब्लैक नोट है वो जी शार्प। उसके बाद आ गया आपका नीचे सी, ए जो वाइट वाला है ए के ऊपर जो ब्लैक वाला है वो है ए शार्प। फिर बी आ गया, बी भी मेरी तरह अकेला है, बी का कोई शार्प नहीं है तो ये, और उसके बाद फिर आ गया दोबारा सी आपका। समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दें, पूछ लें, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। छाया जी समझ में आ रहा है आपको? मेरे को नहीं, ऊपर वाले नोट नहीं समझ में आए, नीचे वाले तो समझ आ गए कि अच्छा। सात का ग्रुप है, उसको एक ऑक्टेव 2 3 4, हाँ, ऊपर हाँ, वाले मुझे समझ ठीक में है, नहीं आए, ठीक है। सॉरी। खाली आपने करना क्या है, जो जी हाँ। ऊपर वाले जो नोट है उसके नीचे, अभी आपको ये नजर आ रहा है ये सी के ऊपर जो ब्लैक वाला है, यस दिस वन, हाँ वो उसको कहेंगे हम मतलब सी शार्प। छठवां वाला, बिल्कुल, 6। हाँ उसको अच्छा। कहेंगे हम सी शार्प। 6 ब्लैक, सी शार्प। उसके बाद जो उसके अगले वाला जो ब्लैक है वो होगा डी शार्प, क्योंकि वो डी के ऊपर है। नीचे व्हाइट वाला आपको कौन सा है? डी है ना, जी व्हाइट वाला डी है, जी सेकंड नोट आपका डी है ना, जी हाँ तो जी। डी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो डी शार्प हो गया। एक तरह से आप ये सोचिए कि नीचे जो व्हाइट जो कीज है वो किंग है और उनके ऊपर जो ब्लैक वाली है वो उनकी क्वींस बैठी हुई है, तो उनका नाम वही है। फर्ज कीजिए ये छाया जी हैं सी, तो सी शार्प जो ऊपर वाला है वो आपके हस्बैंड है, तो आपका नाम मिसेस होगा ना, तो इसका नाम भी ऐसा ही है, सी है तो इसका नाम सी शार्प है, जोड़ी है ये। सी बजाइए पहले, उसके बाद सी शार्प बजाइए, दोनों मिलते जुलते ना, करीब करीब क्लोज हैं ये एक दूसरे से, एक दूसरे के मतलब हस्बैंड वाइफ है समझिए आप। इनके सुर एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट, वो छाई से कही आप मिडिल सी में आई हैं, ये आप मिडिल सी बजा रहे हैं, वो लोअर सी बजा रही है, छाई जी मिडिल सी में आई है थोड़ा, हाँ यहाँ पर, या ये गुरुजी ये बजा रहे हैं। नहीं अभी तो उनको खाली मैं खाली नोट्स याद करवा रहा हूँ कि क्या है, बजाने वाला तो काम बाद में करना है।
अभी उनको नोट के नाम याद हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद ही अपने आप को जरा अनम्यूट रखिए आप। Okie dokie. तो हाँ, ये सी हुआ, ये सी शार्प हो गया। Oh, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे से भी बजाएंगी तो वो भी वही है। ये भी वही है। हाँ, अब समझ सेम आया। है, आप जहां से भी बजाएंगे वो सेम सुर देगा आपको। सुर ये और ये एक ही है। हाँ, ये बात। ओके, सी शार्प। ओके, नीचे वाला सी हो गया, ऊपर वाला सी शार्प हो गया। सी शार्प हो गया। हाँ, उसके बाद जो आप अगला वाला बजाएंगी, अगला वाइट बजाएंगी, वो डी है। उसके ऊपर जो आपका ब्लैक बैठा हुआ है वो है डी शार्प। अच्छा, डी शार्प। हाँ, ओह, मेरे को सुनाई अच्छी तरह नहीं देता, मुझको लग रहा था जी शार्प, डी नहीं, शार्प। सो जी शार्प। डी शार्प, डी एज D इन for डॉग। Donald, Donald, like Yeah, a Donald. Oh, Donald, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बस खाली डोनाल्ड। Donald. Okay, डोनाल्ड डक कह सकते हैं। okay. ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो हमारा ई है। अगला जो अच्छा, वाइट है हमारा जो E है, वो है, ये उसका नाम है ई। E, लेकिन okay. ई जो है वो अकेला है, सिंगल है, सोलो है, उसका पार्टनर नहीं है कोई। Okay, उसके बाद अगला हमारा जो वाइट नोट है वो है एफ। एफ का पार्टनर है उसके ऊपर बैठा हुआ, okay. एफ शार्प। F regular, F sharp. उसके बाद जो नीचे हमारा अगला नोट है वो है जी। जी एज एन गॉड। Yeah, गॉड के ऊपर जो उसका बैठा हुआ ब्लैक वाला वो जी शार्प हो गया। G sharp. उसके this बाद is- अगला है हमारा ए। okay, wow. और ए फिर के ऊपर, ऊपर उसका पार्टनर बैठा हुआ है ए शार्प। so अगर हम इधर से आते हैं, is exactly the same. सेम सेम। Oh, okie dokie. हम्म Okay, so just working on this portion first. हाँ, आप उसी मिडिल पोर्शन के अंदर हम लोग काम करते हैं, लेकिन है सबके सुर सेम ही आएंगे, सिर्फ उनकी पिच चेंज होगी। पिच मतलब हाई नोट्स हो जाएंगे उनके, Okay. लेकिन सुर वही है। सुर वही है, okay. 7 सुर ही है कीबोर्ड के अंदर। 7 मतलब बजाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए अगर ब्लैक वालों को मिलाओ तो 12 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ब्लैक वालों को सबको मिला लो साथ में तो वो 12 हो जाते हैं। लेकिन हम कोई भी गाना अगर हम बजाते हैं या हम प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो 7 सुर के अंदर ही बजता है। लेकिन हम नीचे से ऊपर चले जाए उससे पिच चेंज होती है, सुर चेंज नहीं होता। Okay. सुर वही होते हैं। एक इंसान नीचे से खरच से गा रहा है, जैसे फर्स्ट करें एक गाना मेहंदी हसन खान साहब गा रहे हैं तो वो नीचे उससे गा रहे हैं, निचले सप्तक से, निचले ऑक्टिव से। एक चीज जो है वो राहत फतेह अली गा रहा है, वो यहाँ से गा रहा है चौथे से, लेकिन सुर वही है। Okay. सुर चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ पिच चेंज हो रही है। पिच मीन्स के Scale. नहीं, स्केल भी नहीं कह सकते उसको। पिच मीन्स के वो अब देखें नीचे से मैं अगर आपको गा करके सुनाऊं, अगर आगे में आया मेरा गला वैसा नहीं है कि मैं 4 में गा सकूं, लेकिन एक खाली आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि लेकिन सुर वही है, खाली हमारी आवाज जो है वो और ज्यादा पिच, हाई पिच में जा रही है। ठीक है,
समझ रहे, मेरे को उनको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा. Hopefully the second session will be better for me. I'm कोई going बात नहीं, to I'm अभी going to आप put a little spot there so I know what they are, because अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है. चलिए, अभी आपने ये नाम लिख लिए ना? हाँ आपने लिखे. ठीक है, अब आप नाम याद करके, अभी आपका पहला लेसन क्या है? हाँ जी. अभी आप सी पकड़िए, रखिए, नोटबुक रख दीजिए, राइट हैंड से थंब अपना यूज कीजिए, राइट हैंड से. ओ राइट हैंड से. हाँ, और उसके बाद आपका दूसरा नोट जो है डी, ABCI. उसकी जो अगली फिंगर है आपकी, नेक्स्ट फिंगर ये वाला? आपकी, ये पूरी 5 फिंगर जो है ना, जी हाँ. आपने ये करना है. इधर देख लीजिए, पहले पूरी 5 फिंगर आपको यूज होनी चाहिए. वापस भी ऐसे आना है. वापस भी आना है वैसे ही. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. हाँ, अब इसी चीज को आप मिडिल से बजाइए. धीरे से. मिडिल 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 से. मिडिल की नहीं, मिडिल यहाँ से. सेंटर में आ जाइए. वही सेंटर का जो सी है वहां से बजाइए. सेंटर का सी कौन सा है? 6. ये वो ये वाला. आगे नहीं, नीचे और आगे आइए. और हाँ, ये सी देखिए, सी कौन सा है? सी. जो 2 ब्लैक नोट्स के नीचे वाला है वो सी है. Oh, I see. This one. यस. एक्सक्यूज मी, मैं ना माफी चाहता हूँ, आई एम ऑन अ फ्री वर्जन, तो वो 1 मिनट में बंद होने वाला है, सो वी ऑल हैव टू लॉग इन अगेन. आप लोग, क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आप हाँ लोग जी. मेरे उस पे आ जाइए. हाँ ठीक है, अजय भाई के इस पे आएंगे. मेरा 1 मिनट पेड है. Yep, ठीक है, मैं उनको भेज देता हूँ आपका कनेक्शन नंबर. हाँ, आप उनको भेज दीजिए. ठीक है. भाई जो सुबह भेजा था आपने, एडी भाई सुबह भेजा था वही ना? नहीं, एक और भेज रहे हैं अभी अजय भाई क्या. भेजिए भेजिए, उसको बंद करते हैं. ठीक है. This is. Oh, are we gone? What happened? Yeah, we are logging in again on another account I'm sending you because I have a free account and it's closing just now. All right. So I'm going to buy. प्रैक्टिस है खाली, और कुछ नहीं है. ये एडी भाई को भी पता है. एडी भाई को आप मेरा ख्याल से उनका तो जो हाथ में प्रॉब्लम थी वो प्रैक्टिस कर करके उनका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया. एक्सरसाइज है ना ये. तो हमें क्या करना है, दोनों एक साथ बजाने हैं. बहुत बढ़िया, जबरदस्त. अच्छा, इसके बाद जब इसकी हमारी स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, हमारी स्पीड ये चाहिए हमें. इतनी स्पीड हमारी होनी चाहिए. उसके बाद हमने करना क्या है, हमने अपने दिमाग को स्प्लिट करना है, हाफ एंड हाफ करना है. तो हमारा क्या काम है कि यहां से राइट हैंड से हम बजा रहे हैं, सी से शुरू कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से हम जी से उल्टा जा रहे हैं. लेफ्ट हैंड हमारा
पीछे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक साथ। इसको कहते हैं फिंगर पोजिशनिंग। फिंगर पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो गई, उसके बाद कीबोर्ड आपका हो गया, मतलब सीधे एक तरह से जैसे होता है ना अड़ियल घोड़ा, अड़ियल घोड़े को हमें सुधारना पड़ता है ना, पहले जंगली घोड़ा है उसको हमें सुधारना पड़ता है, तो वो हमारी फिंगर से हमने उसको सुधारना है। So जब हम हाँ जी, किधर है? 2 लोग हैं। पहले हम आज ये करेंगे कि दोनों हाथों से सी से लेके जी तक बजाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे, लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर से नीचे आएगा, इससे क्या होगा, हमारा माइंड स्प्लिट होगा। हमें अपने माइंड को कीबोर्ड बजाते हुए, हमेशा पियानो बजाते हुए अपने माइंड को स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से जो हम लोग चीज बजा रहे होते हैं वो राइट हैंड से डिफरेंट बजती है। अगर तो जैसे मैं फर्ज कीजिए मैं लेफ्ट हैंड से कुछ और बजा रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ मैं। तो बेसिकली हमने अपने माइंड को स्प्लिट करना है, लेकिन वो बाद में करना है। पहला हमारा काम क्या है, हमने दोनों को साथ ही बजाना है। तो एक क्वेश्चन है, जब आपने कहा लेफ्ट हैंड उल्टा जाएगा तो वो बीट जी से शुरू हो रहा है, मतलब कहाँ से शुरू होगा? हाँ, जी से शुरू हो रहा है ना वो। अच्छा अच्छा राइट हैंड आपका सी से शुरू हो रहा है, लेफ्ट हैंड आपका थंब से शुरू हो रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, नजर आ रहा है ओके, आपको? हाँ हाँ। यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये हम बजाते हैं ना और इस किस्म की हम फिंगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड स्प्लिट होता है। तो वो बनते हैं कि जी हम लेफ्ट से क्या करने वाले हैं और राइट से क्या करने वाले I हैं। तो have a simple question, हाँ जी, Sachi. This is Sandy. Is it easy for people like who are absolutely like raw, like me, who have no experience basically? Is it okay for us to first try to get used to the right hand use and then the left hand and then try बिल्कुल to बिल्कुल coordinate? बिल्कुल 100%। अभी आप लोग खाली राइट हैंड पे ही स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट बिगिनिंग जो है वो राइट हैंड से ही कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका राइट हैंड परफेक्ट हो गया है तो फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करना शुरू कीजिए। Perfect. That sounds good. That sounds better to me. Yeah. Thank you. फिर दोनों को साथ में मिला के कीजिए, उसके बाद उसको स्प्लिट कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस चीज को पिकअप करते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। Thank you. और कोई क्वेश्चन? हम्म
और मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया था, जब मैंने लर्निंग शुरू की थी, तो उस वक्त जो है मुझे करते करते प्रैक्टिस दर्द होना बंद हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ के ऊपर वेट्स बांधना शुरू किए। 1 पाउंड 2 पाउंड के वेट्स दोनों हाथों पे बांध के, पत्थर बांधता था उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में, और फिर बजाता था। कि दर्द होना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, आपको फील होना चाहिए कि प्रैक्टिस हो रही है, आपकी फिंगर्स में इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि यूं हम उंगली मारे ना, दीवार में सुराख हो जाए। यहाँ की दीवारों में, पाकिस्तान वाली दीवारें नहीं, वो तो कंक्रीट की होती है। यहाँ की दीवारों में जो है उनमें सुराख हो जाना चाहिए, इतनी हमारी फिंगर्स इतनी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग कीबोर्ड बजा रहे हैं ना, अगर हम लोग पियानो के ऊपर बैठे, जो ग्रैंड पियानो होता है, ग्रैंड पियानो को जब तक आप जोर से मारेंगे नहीं, वो आवाज नहीं निकालेगा, उसमें से आवाज नहीं निकलने वाली। तो आपकी फिंगर्स में इतनी पावर होनी चाहिए, और वो पावर आती है प्रैक्टिस से। जब तक बजाते रहे, जब तक दर्द ना हो जाए हाथ में, दर्द हो जाए 5 मिनट वेट कीजिए, उंगलियों को ऐसे ऐसे कीजिए, 5 मिनट के बाद फिर शुरू हो जाइए। एक तरह से ये तपस्या है, वो करनी है। किसी और का कोई सवाल? अभी फिर ऐसा कीजिए, आप सब लोग 1 बाय 1 मुझे सुनाइए राइट हैंड खाली, अपने आप को अनम्यूट करके 1 बाय 1 राइट हैंड का मुझे राइट हैंड से बिल्कुल एंड से मैं सुनाऊं आपको? मैं हाँ, छाया बोल रही हूँ। बिल्कुल सुनाइए, ऊपर से। दूसरा है 2 काली नो, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा, जी को 2 दफा नहीं दबाना। ओ आई सी, ओके, लेट मी ट्राई अगेन वन। लेकिन हमने इसको बजाना कैसे है, हमने बीच में रुकना नहीं है। सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं। oh sorry I have to get used to it. हाँ, इजी, ऐसा तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमारा साउंड पता कैसे करना चाहिए, आप सब लोग ये साउंड अपने दिमाग में बिठाइए। Do re mi. ठीक है, हाँ, आप सही बजा रही है, लेकिन उसमें क्या है, हमें किसी भी फिंगर को कहीं पे रोक के नहीं रखना, एक ही टाइम के ऊपर चेंज करते जाए। अच्छा, बस ये चाहिए। okay. I think next week I'll be better. Thank you. आप इसके ऊपर शुरू कीजिए, बाकी जो हमारे और हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं? मैं बजा सकती हूँ, बजाइए राइट हैंड से। जबरदस्त, बहुत अच्छे। लेफ्ट हैंड से ट्राई करती हूँ, लेफ्ट तो नहीं आता है। अरे हो रहा है भाई, आप पे चल रहा है। लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है। ऐसा तो हो जाएगा।
टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जो है वो कीजिए, नेक्स्ट वीक तक आपका ये भी हो जाएगा ठीक। जी, लेकिन मैं Thank आपको you. अभी से ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपका ये चीज 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, दोनों एक साथ बजने लगते हैं, तो उसके बाद आप स्प्लिट भी बजाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो वो आपने बताया कि हम इसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं ऐसे, हाँ ये हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक है, मैं करूंगी। फिर Thank आप उसके ऊपर शुरू हो जाइएगा, जी, थैंक यू। ताकि हम लोग जितनी जल्दी हम आगे आगे सीख सके उतना अच्छा है। आप औरों का देखें। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और हमारे वो हारमोनियम वाले भाई कहाँ गए? हाँ जी गुरुजी नमस्कार, और आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें टाइम दे रहे हैं। मेरे पास कीबोर्ड भी है और एक्यूस्टिक पियानो भी है, तो अगली बार मैं कीबोर्ड पे इसको सेट करूंगा। मुझे ध्यान नहीं था कीबोर्ड पे सेट करना है, तो हारमोनियम से मैं आपको बजा के बता सकता हूँ। बजाओ जी। आप मुझे अपनी फिंगर पोजीशन दिखाइए। अगर आपने फर्ज कीजिए आपने सी बजाना है, सी का स्केल बजाना, सी मेजर का। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अब आपने अगला क्या करना है, आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए। आप बजाएंगे आप सी शार्प मेजर। सी शार्प जो ऊपर वाला है, काले वाला, हाँ काला वाला, सी के नीचे है ना, सी के नीचे। हाँ सी शार्प से, वो हमारा सा जो है। हाँ हाँ हाँ, तो वो हारमोनी के ऊपर बजाओ। हाँ परफेक्ट, आपकी फिंगर पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है, यही चाहिए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब इसका अगर हम फर्ज कीजिए हम सी शार्प मेजर की जगह सी शार्प माइनर बजा रहे हैं, तो कैसे बजाएंगे? सी शार्प माइनर, माइनर का पता है आपको? सी शार्प माइनर, हाँ जी, सी से ये सी शार्प से ही बजेगा। इसके नोट्स क्या होंगे? सी शार्प नोट्स लिख लीजिए। अच्छा हाँ हाँ तो सी शार्प माइनर का जो स्केल है उसके नोट्स है सी शार्प, फिर है डी शार्प, फिर है ई, ई एज एन एलिफेंट, उसके बाद है एफ शार्प, एफ शार्प के बाद है अगला हमारा जी शार्प, जी शार्प के बाद है हमारा ए के बाद है हमारा बी, बी एज एन डॉग, और उसके बाद दोबारा सी शार्प। हाँ सही सही, नहीं 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 नहीं, ब्लैक से शुरू हो रहा है, सी शार्प से शुरू कर रहे हैं। सी शार्प, डी शार्प, अगला उसके बाद ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए पे थम आएगा हमारा, ना ना ना, ए ब्लैक नहीं, व्हाइट वाला ए नहीं ए, हाँ ए हाँ, इस पे आएगा हमारा थम, उसके बाद हमारी आएगी अगली फिंगर बी, और फिर सी शार्प। ठीक है। तो ये आपका सी शार्प माइनर, इंग्लिश में इसको सी शार्प माइनर कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा है राग दरबारी। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लैट नोट लगाया। चलता है तो चलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, दिल चलता है तो चलने दे।
कि सी शार्प माइनर, इंग्लिश में इसको सी शार्प माइनर का स्केल कहते हैं और हिंदी में ये है राग दरबारी। और राग दरबारी में हमारे हिंदुस्तानी गाने जो है बहुत सारे बने, बहुत सारी गजलें हैं राग दरबारी के अंदर। मेहदी हसन खान साहब की भी बहुत सारी हैं, गुलाम अली खान साहब की बहुत सारी गजल हैं, और बॉलीवुड में भी मूवीज के अंदर भी बहुत सारे गाने हैं जो इसके ऊपर है। जैसे हम लोग वो सुनते हैं गाने, नए गानों में अगर हम निकाले तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। इसमें सिर्फ वही नोट्स यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको सी शार्प माइनर के स्केल में बताए। और नेहा कक्कड़ के भी अभी बहुत सारे गाने, जितने जो लव सॉन्ग्स हैं वो भी इसी स्केल्स के अंदर होते हैं। कोई भी गाना नेहा कक्कड़ का बताइए, मुझे याद कराइए, किसी को अगर कुछ याद आ रहा हो तो। ये लव सॉन्ग्स हैं उसके। तो ये नोट्स जो है ये याद रखिए, सी शार्प माइनर का स्केल और सी शार्प मेजर का स्केल। सी शार्प मेजर आपको आता है तो वो ठीक है, सी शार्प माइनर के ऊपर आप लिख के रखिए उसको, और उसको भी बहुत सारा बजाना है। सबने स्केल लिखा है, नोट्स लिखे हैं सी शार्प माइनर के, सी शार्प मेजर के? सी शार्प मेजर के आप फिर से बताइएगा प्लीज। सी शार्प मेजर का है सी शार्प, डी शार्प, डी एज एन डॉग, एफ, एफ एज एन फ्रैंक, फिर एफ शार्प, एफ शार्प के बाद है हमारा अगला जी शार्प, फिर है हमारा ए शार्प, उसके बाद है हमारा सी, उसके बाद है हमारा सी शार्प। ये हो गया हमारा एफ शार्प मेजर। अब माइनर में क्या करना है हमने? माइनर के नोट्स थोड़े से चेंज हैं, तो तीन नोट्स का फर्क है। सी शार्प है, फिर डी शार्प है, उसके बाद ई है, एफ की जगह ई है, उसके बाद फिर एफ शार्प है, फिर जी शार्प है, उसके बाद ए शार्प की जगह ए है, वाइट वाला नीचे वाला, उसके बाद है बी, बी के बाद है सी शार्प। ये हो गया हमारा माइनर स्केल। ठीक है, अब इनकी फिंगरिंग आप बता सकते हैं फिर? हाँ, फिंगरिंग बता दो आपको। अब जैसे हम फर्स्ट कीजिए मेजर बजा रहे हैं, तो सी शार्प का स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट फिंगर से, सेकंड फिंगर हमारी आएगी डी शार्प के ऊपर, ठीक है, फिर आएगा हमारा थंब, एफ के ऊपर थंब है, उसके बाद फिर हमारी फर्स्ट फिंगर आ जाएगी एफ शार्प के ऊपर, फिर मिडिल फिंगर आ जाएगी जी शार्प के ऊपर, फिर हमारी जो फोर्थ फिंगर है वो आ जाएगी ए शार्प के ऊपर, फिर हमारा थंब आएगा सी के ऊपर, उसके बाद फिर फर्स्ट फिंगर आ जाएगी सी शार्प के ऊपर, और इसी तरह हमने वापस भी आना है, सेम ठीक है। सेम हमने वापस भी आना है। ठीक है, और अब माइनर की जो है फिंगर पोजीशन वो भी आपको बताता हूं मैं। सी शार्प पे आपकी फर्स्ट फिंगर आई, सेकंड फिंगर डी शार्प पे आई, आपका थंब आया ई के ऊपर, फिर फर्स्ट फिंगर आया आपकी एफ शार्प के ऊपर,
फिर आपकी मिडिल फिंगर आई जी शार्प के ऊपर, उसके बाद आपका थंब आया ए के ऊपर, उसके बाद फर्स्ट फिंगर आई आपकी बी के ऊपर, उसके बाद आपकी मिडिल फिंगर आ गई सी शार्प के ऊपर। हाँ, और ऐसे ही वापस आ जाना है। ठीक है, जैसे जाना है वापसी में भी वही फिंगर्स उसी नोट के ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारी फिंगर पोजीशन खराब हो गई तो हम आगे नहीं जा सकते, हम एक ही ऑक्टेव के अंदर फंस जाएंगे। तो फिंगर पोजीशन का फायदा ये होता है कि हम आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक ऑक्टेव के अंदर अपनी फिंगर्स को इतना मजबूत कर देना है कि हमें कीबोर्ड देखने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे हाथ खुद ब खुद काम कर रहे हो, बस वो खुद ही, उनको पता है, फिंगर्स को पता है कि कौन से नोट के ऊपर कहां पढ़ना है। और वो कैसे होगा? हमारी प्रैक्टिस से। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करके बस बजाया चले जाओ। जो पहली आपको प्रैक्टिस मैंने बताई है वो आंखें बंद करके होनी चाहिए, ऐसी। स्टार्ट जो हमारा हो रहा है, बिगिनिंग, अभी हमने इसके ऊपर काम करना है, फिर हमने इसको उल्टा लेके आना है। ठीक है, उसके बाद हमने स्केल बजाना है, सी शार्प मेजर और माइनर का। समझ में आया कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? नहीं, आई एम गुड। आपने सैंडी जी का नहीं देखा है अभी, उनको भी बजाने का? हाँ, मुझे कोई सैंडी जी नजर नहीं आ रहे। Hello. सैंडी, Yeah. हाँ। Hello. Yeah, I'm like a real novice, so I'll get it all messed up, I'm sure. I'll try. हाँ हाँ, पांचवी फिंगर कहाँ है? पांचवी फिंगर कहाँ है? पांचवी फिंगर पिंकी, पिंकी कब बजेगी? Oh, yeah, that's right. हम्म, I'm बजाइए like, बजाइए बजाइए, कोई नहीं। okay. Then, oh, जी, then the जी, pinky. हाँ, जी के ऊपर पिंकी जाएगी आपकी। यस यस, परफेक्ट। Okay, got it now. और यही काम आपने लेफ्ट हैंड से भी करना है। Yeah, that will take me a little more time, but this I will first get the hang of and then हाँ do the हाँ, left. बिल्कुल। Yeah, yeah. पूरी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जब तक तो आप ये कर चुकी होंगी मेरे ख्याल से। Correct, correct. ठीक है, Yes. तो मैं मतलब हर जितने भी हमारे हैं लोग, उनको उनके हिसाब से बताता जाऊंगा कि किस लेवल तक वो जा रहे हैं। 1 बाय 1 हम लोग इस तरह से चलेंगे। Perfect. ठीक Yeah. है, Yes. एडी जी, आपको जो लास्ट लेसन जो दिया था आप मुझे सुनाएंगे जरा प्लीज। अब आप Teenager. Okay. नहीं, गलत कर रहे हैं एडी, एडी जी, भूल गए आप। इधर इधर सुनिए, साउंड सुनिए, साउंड सुनिए। स्टे नहीं करना किसी भी नोट के ऊपर, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। हमने स्टे नहीं करना, हमने चला के रखना है, आरपीजीओ है ये। रुकना नहीं है किसी भी नोट के ऊपर।
आज फंस नहीं लास्ट टाइम तो सही कर रहे थे आप काफी हद तक। दोबारा आपको जब तक आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं करेंगे, मैंने आपको अगला लेसन देना ही नहीं। हम्म हम्म ओ ओके, कोई बात नहीं। मेरा जूम जो है वो तो पेड है, मैं तो एवरी मंथ पे करता हूँ, तो हाँ पेड अकाउंट है, क्योंकि मेरी जो क्लासेस जूम पे ही चलती है ना, आजकल लोग आते नहीं है, आना मुश्किल होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान में भी है, कुछ इंडिया में भी हैं, तो वो इस तरह से चलता रहता है, इसलिए मैं पैसे देता हूँ भाई। तो ये तो लेटेस्ट भेजा है, यही रहेगा अगले वीक? लेटेस्ट जो लिंक भेजा आज आपने, यही रहेगा नेक्स्ट वीक? जो आप कहें, जो आपकी मर्जी। अगर आप हाँ हाँ, मैं ये करूंगा कि अब मेरे ही अकाउंट के ऊपर आप लोग आइए और मैं आपको होस्ट बना, बाकी आप देखते जाइएगा किसको एंटर करना है, किसको नहीं करना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं। कहीं पे फंसना नहीं है, कहीं पे फंस रहे हैं तो मुझसे फोन करके पूछ लीजिए। गलत प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस सही करनी है बस। गलत प्रैक्टिस का मतलब कि आपका बेस ही ठीक नहीं हुआ तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर सकते। बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। बेस का मतलब क्या? हमारी फिंगर पोजीशनिंग। फिंगर पोजीशन अगर हमारी ठीक नहीं है तो हम आगे कोई भी चीज नहीं बजा सकते, कोई गाना नहीं बजेगा हमसे। समझ रहे हैं सब लोग? तो मैं एवरी टाइम जब भी किसी का वो क्वेश्चन होगा मुझे फोन कीजिए, रुकना नहीं है। और ये सफर हम सब ने मिलके तय करना है। Thank you very much. बहुत अच्छा रहा। Thanks so much. थैंक यू एवरीवन। गुरु जी आपके टाइम के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। और एडी जी ने इतना मतलब वो कर दिया है कि एक साथ इतने सारे प्यारे म्यूजिक लवर्स जो हैं वो मुझे मिल गए। तो आप लोग मेरी फैमिली की तरह से, जो इंसान म्यूजिक को प्यार करता है। We are so honored to have a teacher like you, but just that I am so bad. Like I'm starting from actually zero. अरे कोई बात नहीं, हम जीरो से शुरू करेंगे, आप डरती क्यों हैं यार? अच्छा, हम ठीक हैं है। आपके साथ। नहीं, सभी जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हाँ ऐसा नहीं है, सभी जीरो से ही कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूँ कि मैं भी आज तक सीख ही रहा हूँ। मुझे भी 31-32 साल हो गए बजाते हुए, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। Right. मैं रोज ही कुछ ना कुछ सीखता हूँ, नई चीज। That is true. और छाया जी आपने कभी ये मत कहो मैं आई एम सो बैड। वी आर नॉट बैड, वी आर जस्ट आर गेटिंग Shayaji बेटर, has left. वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग, नोबडी इज बैड, वी आर बैड गेटिंग हो नहीं बेटर। सकता, बैड कैसे हो सकते हैं? हम लोग बैड हो नहीं, म्यूजिक से नेगेटिव प्यार वर्ड मत करते हैं। यूज करो, बैड नहीं है। हम लोग म्यूजिक से प्यार करते हैं, हम बैड हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। Yeah, that's true. That's जो the way to इंसान look at it. म्यूजिक से प्यार करता है उसका दिल साफ होता है। That is true. हम क्लीन हार्टेड लोग हैं। Thank you. हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम अपने म्यूजिक से प्यार करते हैं, बस उसके अंदर ही खुश हैं। That's true. तो और क्या चाहिए? Yeah, ऊपर that वाले is के so nice. ऊपर वाले से करीब है हम लोग। सही बात है। सही बात है। Very good. जो इंसान म्यूजिक से प्यार करता है और बाकी बुरी चीजों से दूर रहता है वो ऊपर वाले के करीब है। True. Very nice. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें बस म्यूजिक से प्यार करना है और मिलके हम बजाना भी शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक तो है। प्रैक्टिस करते जाए, मेहनत करिए और अपने आप को एंजॉय कराइए। जब आपका
खुद आप जब एक दिन ऐसे बजा रहे होगे ना, खाली बैठ के ये बजाएंगे, अकेले बैठ के, इतना मजा आएगा ना जिंदगी का, क्या कहेंगे यार, इससे अच्छी लाइफ ही नहीं है। ऐसे सुर कानों में आना शुरू हो जाए अपने हाथ से, अपने ही हाथों से ऐसे सुर सुनने को मिल जाए, तो जिंदगी में और चाहिए क्या। गुरुजी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मेरे पास एक्यूस्टिक पियानो भी है। मैं काफी देर पियानो सीखने गया था, फिर ज्यादा बना नहीं। फिर किसी ने कहा भाई तुम सिंगिंग पे ज्यादा ध्यान दो, कीबोर्ड पे मत ध्यान दो। तो आपके लेसन के लिए मेरे पास कीबोर्ड भी है यामाहा का, तो कीबोर्ड ही मेरे को आपके लेसन की रखना चाहिए। हाँ कीबोर्ड रख लीजिए, क्योंकि हारमोनियम में हम एक हाथ के ऊपर। नहीं हारमोनियम नहीं, हारमोनियम एक्यूस्टिक पियानो है मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है। तो अब कीबोर्ड ज्यादा ठीक रहेगा आपके लेसन के लिए ना, आपका लेसन लेने के लिए। बात प्रैक्टिस दोनों एक ही चीज है, पियानो हो या कीबोर्ड हो सेम चीज है, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों हाथों से बजते हैं। ठीक है, हमें अपने दोनों हाथों के ऊपर काम करना है। ठीक है। अगली बार फिर मैं कीबोर्ड फिट कर लूंगा, कीबोर्ड सेट कर लूंगा अगली बार। कीबोर्ड कर लीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि हमने अपना लेफ्ट हैंड भी चलाना है, हमें लेफ्ट हैंड को अकेला नहीं छोड़ना, वो भी हमारा अपना ही है ना। किसी और का तो हमने उसको भी यूज करना है, उसको भी हमने तैयार करना है। ठीक है, दोनों हमारे बच्चे हैं, राइट वाला भी हमारा बच्चा है, लेफ्ट वाला भी हमारा बच्चा है, दोनों को हमने ट्रेंड करना है। और ऐसा ट्रेन करना है कि जब ये चलने शुरू करें तो ऐसे सुर बिखरे कि दुनिया गए कि वाह 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 क्या बात है। So when you're using your right hand and left hand, so basically you're playing two different octaves, right? Yes. So that doesn't interfere. You said it's the same tune that you're playing in two different pitches, right? So but then it doesn't interfere with the sound quality? No. No. Just play right now. Play C from your right hand, thumb, and from the lower octave, play C from your pinky. It's gonna sound same. Yeah, right. It's the same. It is the same sound. It's just that slightly. अगर मैं फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ से सी बजा रहा हूँ और ऊपर से मैं राइट हैंड से सी शार्प बजा रहा हूँ, अब देखिए कितना डिफरेंस आएगा। हॉरर साउंड, हॉरर। लेकिन मैं यहाँ से सी बजा रहा हूँ तो सेम। Yes, absolutely. ठीक है। तो ऑक्टेव चेंज होता है, पिच जो है वो चेंज है, एक थोड़ा नीचे है एक ऊपर है, लेकिन सुर वही है। Perfect. सुर सिर्फ साथ ही है। Yeah, that makes sense. हाँ सही बात। जब वेटर चाय डालने आता है ना तो ऐसे ऐसे करते हैं कि और डाल दो यार। हाँ जी, तो हम सब ने क्या करना है, इस पूरे वीक कम से कम रोजाना इतनी देर तक प्रैक्टिस करनी है जब तक हाथों में हमारे दर्द ना हो। पेन, जब तक पेन नहीं होगा गेन नहीं होगा। सही बात है। No pain, no gain.
या नो पेन नो गेन। अगर क्या? आपने ऐसा किया कि जी मैंने बस 15 मिनट बजा लिया, चलो भाई हो गया, जब तक हमारे हाथ थक नहीं जाते दर्द से, जब तक हमने रुकना नहीं है। 1 घंटा लगे हमें, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, सबके पास टाइम है आजकल। तो कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं जरा थोड़ा हार्डकोर किस्म का। तो जो लेसन आज दिए गए हैं वो मुझे नेक्स्ट वीक पूरे सुनने हैं आप सब से, Okay, good. वरना आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं किसी को। गुरु जी अपने दर्शन तो दो, हमने आपके चेहरे नहीं देखा अभी। अरे नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड। मैं फोन से भी लॉगिन हुआ हूँ और यहाँ पे कैमरा कीबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ताकि फोन मैंने इसलिए रखा था कि मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा सकूं कीबोर्ड का। वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा और थैंक्स टू एडी जी। हाँ, थैंक्स एडी जी, डेफिनेट। एडी भाई बहुत बहुत मेहरबानी। Thank you, Eddie ji. यू आर द बैकबोन ऑफ दिस ग्रुप, एनी ग्रुप रादर। उन्होंने शायद बताया नहीं होगा, मैं अकेला रहता हूँ, अकेला इंसान हूँ, सिर्फ म्यूजिक करता हूँ और म्यूजिक से प्यार करता हूँ। डिवोर्स हूँ मैं, तो मैं वो इंसान हूँ जिसको इतना सा प्यार दे दो मैं उसको फैमिली बना लेता हूँ। तो मुझे आज एक नई फैमिली मिल गई है। यू आर ग्रेट, वेरी ग्रेट, Oh, nice. Thank you. वेरी ग्रेट। Very nice. चलिए, नमस्कार। चलिए जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच Thank you so much. गुरु जी एंड एडी भाई, बहुत बहुत। Yeah, कल हमें इकट्ठा करने का सारा श्रेय आपको जाता है। हाँ, एडी जी को जाता है। absolutely. थैंक यू। Okay. फिर भी अभी जाते हुए बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीक सब सुनूंगा मैं, जी बिल्कुल। वरना डांट भी पड़ने वाली है सबको। हाँ सही बात है। बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है। Good to have a little pressure on you to बिल्कुल, get better. Especially for me, I really don't know anything. आपको करना पड़ेगा। डोंट नो क्या, डोंट नो कोई भी पेट से थोड़ी सीख के आता है, सीखना पड़ता है। Exactly. Thank you. हाँ, सब ठीक। Thank you so much. चलिए, Okay. okay, थैंक यू वेरी मच, बाय। नमस्कार सब लोगों को मेरी तरफ से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।